سب سے پہلے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، سبحان اللہ، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ علم کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کے درجے میں نہیں رکھا، مستحب کے درجے میں نہیں رکھا، فرض کے درجے میں رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مسلم کو یہ ذہن دیا، اے مسلمانوں یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ اب تمہارے لیے پرائیورٹی یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ ابھی نماز کی فرضیت کا حکم نازل نہیں ہوا، ابھی روزہ فرض نہیں ہوا، ابھی حج فرض نہیں ہوا، ابھی زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کو تشکیل دینا چاہتے ہیں جس قوم کے ہاتھ میں مستقبل کی قیادت ہو، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو رحمان و رحیم ہے، تمام کائنات کو بنانے والا ہے اور ہمارا خالق اور مالک ہے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اللہ کی آخری نبی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہندی قرآن بیان۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آج کا عنوان ہے علم سیکھنا فرض ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کل کا مسلمان علم سیکھنا کیوں نہیں چاہتا ہے؟ معزز سامعین اکرام، آپ سوچے ذرا، اگر علم نہیں سیکھیں گے تو علم کے بغیر نماز کیسے پڑھیں گے؟ اسلام کے مسئلہ مسائل کو کیسے سمجھیں گے؟ اگر ہم اور آپ علم نہیں سیکھیں گے تو حرام اور حلال میں کیسے فرق کر پائیں گے؟ معزز سامعین اکرام، علم ایک ایسا تالا کی چابی ہے جو جانور اور انسان میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا ہر بندہ مومن پہ فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ اگر علم نہیں سیکھیں گے تو یاد رکھیے کہ آپ گنہگار ہیں، کیونکہ علم سیکھنا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا فرض ہے۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ یہ ویڈیو مولانا ثاقب علی نوری صاحب کا ہے، تو محبت کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم اور آپ مل کر پلے کرتے ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں اس علم کے حاصل کرنے کے سلسلے میں مسلمان ہونے کے اندر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ننھے بچوں میں سب سے پہلے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، اور آہستہ آہستہ صحابہ کرام علیہم الرضوان آغوش اسلام کے اندر قدم رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی کلاس کے اندر اور اسکول کے اندر ایڈمیشن کے لیے ایج ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس ایج سے لے کر اس ایج تک آپ کو کے جی میں ایڈمیشن ملے گا۔ آپ اگر اتنی ایج کے ہیں تو کے جی میں، اتنی ایج کے ہیں تو فرسٹ میں، اتنی ایج کے ہیں تو سیکنڈ میں۔ یہ ایک تھوڑا سا سسٹم نظر آتا ہے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کے اندر جہاں 7 سال کا بچہ نظر آتا ہے وہاں 40 سال کا ضعیف بھی نظر آتا ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذہن دیا کہ اگر تعلیم کو فروغ دینا ہے تو ضروری یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس عالیشان عمارت ہو، تمہارے پاس عالیشان اسکول ہو، تمہارے پاس عالیشان یونیورسٹی ہو۔ آؤ ذرا میرا طریقہ تعلیم دیکھو۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ہر طرف سے پہرا بٹھایا جا رہا تھا، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم کے لیے کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی اسکول نہیں تھی، لیکن اے حضرت ارقم، آپ کی عظمتوں کو کروڑوں سلام کہ آپ نے اپنا گھر تعلیم کے لیے دے رکھا تھا۔ دار ارقم میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ لوگ حاضر ہوتے تھے
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वालों को दारे अरकम के अंदर जबल सफा के पास जो मौजूद था, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में तालीम दे रहे थे। यहां से ये बात समझ में आई कि तालीम का सिलसिला अगर तुम्हारे पास हजारहा मजबूरी हो, लेकिन अगर घर में बिठा करके भी तुम किसी की क्लास ले सकते हो और पढ़ा सकते हो, तो तुम्हें इस क्लास के सिलसिले में सोचना होगा और तुम्हें इसके बारे में जिद्दोजहद करनी होगी। ये उसवे रसूल से हमें पैगाम मिल रहा है, ये पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से हमें ये दर्स मिल रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, काश हमारे मुआशरे के वो सरमाएदार जिनके पास बड़े महल हैं, जो चाहे तो पलक के झपकते क्लास और स्कूल और यूनिवर्सिटी कायम कर सकते हैं, इदारे कायम कर सकते हैं, वो अपना सरमाया इस तरफ लगाकर अपने रसूल की खुशनुदी की कोशिश करते, तो मैं यकीनन ये महसूस कर सकता हूं कि कितना बड़ा इनकलाब पैदा होता। आज भी मुसलमानों की बस्तियां ऐसी हैं जहां पर एक स्कूल नजर नहीं आती। आज भी मुसलमानों की ऐसी बस्तियां हैं जहां पर एक मकतब या दारुल उलूम नजर नहीं आता। हमारी कौम के लोगों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि किसी मुसलमान के गलत अमाल की बुनियाद पर हम पर कोई चार्ज न लगाए, तो हमें इल्मी इनकलाब लाना होगा। इल्म ही हमारे मुसलमानों की जिंदगी में इनकलाब ला सकता है और इल्म के जरिए ही हम मुसलमानों को जमीन से बुलंदी पर, जमीन से आसमान तक ले जा सकते हैं, जवाल से उरूज तक ले जा सकते हैं। तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की जिंदगी में इनकलाब के लिए, अपने मानने वालों की जिंदगी में इनकलाब के लिए पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को फर्ज का दर्जा दे दिया। अल्लाह अकबर। फर्ज का दर्जा देकर कंपलसरी करके हर एक को बता दिया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो हुसूल इल्म के अंदर मेहनत और मशक्कत करो। उसके बाद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारे अरकम के अंदर आयात इलाही के नुज़ूल के बाद उसकी तशरीहात, उसकी तौज़ीहात, उसके फवाइद और उसके असरार और रुमूज सहाबा को बताते रहे। इंसान ढलते रहे, अच्छे इंसान बनते रहे, इसलिए कि वही ये इलाही की रोशनी के अंदर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत फरमा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया था, एज फैक्टर, अल्लाह अकबर, हर इबादत के लिए एज कंपलसरी है। अल्लाह अकबर। नमाज फर्ज है, लेकिन उसके लिए आकिल और बालिग होना जरूरी है। आप ज़कात को ले लीजिए, आप हज को ले लीजिए, आप रोजे को ले लीजिए, अल्लाह अकबर, इन सारी इबादतों के लिए एज फैक्टर कंपलसरी है, बालिग होना कंपलसरी है। लेकिन इल्म के लिए सरकार ने यह कैद भी उठा दी और फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। आप कितना बड़ा जज्बा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा फरमा रहे हैं अपने मानने वालों के लिए कि कोई एज फैक्टर नहीं। अगर तुम मां की गोद में हो तो इल्म हासिल करो, और तुम्हें कब तक इल्म हासिल करना है? कब्र तक तुम्हें इल्म हासिल करना है। अब कोई अगर ये तसव्वुर करे मेरे पास जितना इल्म है वो इनफ है, कोई ये सोचे मैं बालिग होने के बाद इल्म हासिल करूंगा, इससे पहले मेरे लिए मुश्किल है, नहीं नहीं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये आखिर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक, याद रखें मां सिर्फ दूध नहीं पिलाती, दूध के साथ अपना किरदार भी पिलाती है, अपना एजुकेशन भी पिलाती है। जिन माओं ने दूध के साथ अपने बच्चों को किरदार पिलाया वो बड़े मनुष्य हो गए, वो बड़े इंसान बन गए, वो ताकतवर इंसान बन गए, वो मुक्तदा बन गए, वो पेशवा बन गए, वो लोगों को सीधे रास्ते पर चलाने वाले बन गए। और मां के शिकम में परवरिश पाने वाला बच्चा मां की आदतों से मुतासिर होता है। मां की आदतें अगर बच्चा पेट में है और अच्छी हैं तो बच्चा अच्छा पैदा होगा। अगर मां तिलावत करती है बच्चा कारी कुरान पैदा होगा, मां दुरूद शरीफ पढ़ती है बच्चे के अंदर इनकलाब पैदा होगा। मां की आदतों का असर, मां के एजुकेशन का असर
बच्चा जो माँ के शिकम में होता है उसमें पड़ता है। और ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हर एक मुफक्किर ने यही कहा है कि माँ की गोद बच्चे के लिए पहली यूनिवर्सिटी है। ये आज का मुफक्किर कहता है, लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमा दिया था कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। अल्लाह अकबर। सहाबा ने इसे सीरियस लिया, सहाबा ने इस पर तवज्जो दी, सहाबा ने इसे बिल्कुल अपने लिए लाजिम करार दिया। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम ने एज की कैद हटा दी, उम्र की कैद हटा दी, ताकि दुनिया का कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैं इल्म हासिल करके मेरे पास बीए की डिग्री आ गई या एमकॉम की डिग्री आ गई या मैंने एमबीबीएस कर लिया या मैं एमडी हो गया तो मेरे लिए इनफ है। नहीं, बल्कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र की गोद तक का फरमा कर ये वाज़ेह फरमा दिया कि इल्म का मामला ये है, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला हुआ करता है। वह फौका कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, ये मेरे रब का फरमान है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए सहाबा ने कभी अपने आप को कंप्लीट नहीं समझा, हमेशा पूरी जिंदगी अपने आप के लिए मुतअल्लिम की हैसियत से तसव्वुर करते रहे और जिंदगी गुजारते रहे। तो यहां से ये बात समझ में आई कि मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। हमें मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एज के जिस उम्र के एतबार से जिस जगह पर हैं, चाहे 40 के हो चुके हों, चाहे 50 के हो चुके हों, हमें यह नहीं सोचना कि अब हमें इल्म हासिल नहीं करना, अब हमारी उम्र इतनी हो गई। नहीं, हम कब्र की दहलीज तक नहीं पहुंचे तब तक हमें इल्म हासिल करना चाहिए। मुझे यहां पर इमाम अबू यूसुफ अलैहिर्रहमा का एक वाकया याद आ रहा है। अल्लाह अकबर। बिस्तर मर्ग पर थे, जहां बलग थे हजरत इमाम अबू यूसुफ। उनके मुआसिरीन में से एक बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं, मिजाज पुरसिश के लिए आते हैं, तबीयत पूछने के लिए आते हैं और इमाम अबू यूसुफ अलैहिर्रहमा से एक मसला पूछ बैठते हैं कि बताइए, रमिए जमार सवारी पर बेहतर है, अफजल है, या खड़े रह करके अफजल है, पैदल अफजल है? अल्लाह अकबर। इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमत व रिज़वान के पास आने वाले से इमाम अबू यूसुफ ने यह सवाल किया, आने वाले बुजुर्ग से। उन्होंने कहा, अबू यूसुफ, इस वक्त तुम्हारी तबीयत ऐसी है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, इस वक्त इल्मी मुज़ाकरे की जरूरत नहीं, तवानाई तुम्हारे जिस्म में नहीं है, इतना सुनना था। इमाम अबू यूसुफ उठ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं आपकी बात मानूं या अपने नबी के फरमान पर अमल करूं? मेरे पैगंबर ने, मेरे रसूल ने, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। मैं अभी कब्र की गोद तक नहीं पहुंचा, सोचता हूं मरते मरते भी कुछ इल्म हासिल करके मरूं। ये जज्बा था, ये कैफियत थी, ये सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के गुलामों का हाल था। पूरी दुनिया में इल्म की खैरात तब उनकी वजह से बटा करती थी और दुनिया इल्म के एतबार से उनको लोहा मानती थी और दुनिया उनके सामने पहुंचकर ज़ानुए अदब तय करती थी और उसके बाद दुनिया उनके पास से इल्म की खैरात हासिल करके अपना मकाम व मर्तबा बनाने की कोशिश करती थी। आप जरा सोचें, तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज की कैद हटा दी। आज माएं अपने बच्चों के सामने बन सवर कर गलत तरीके से फोन पर और टेलीफोन पर गुफ्तगू करती नजर आती हैं, समझती हैं हमारे बच्चों पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, बच्चों के अंदर सलाहियत होती है ऑब्जर्व करने की, और बच्चे उन आदतों को और उन फिक्रों को जो माँ बाप की होती है, बच्चे उसे कबूल कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए माँ बाप को चाहिए अपने घर के माहौल को दुरुस्त रखें ताकि बच्चों की आदतें मुतगय्यर न हों और माएँ और बाप दीन के इल्म से अच्छी तरीके से आरास्ता हूं ताकि बच्चों की रहनुमाई की जा सके। अल्लाह अकबर। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि आप समझ सकें स्टेप बाय स्टेप पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से इल्म के हवाले से रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई। अब ये दो चीजें समझने के बाद आइए अब तीसरी चीज की तरफ। अल्लाह अकबर। हर कोई घर का जिम्मेदार होता है, कोई ना कोई तो घर का जिम्मेदार होता
होता है। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर जिम्मेदार से उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाहु अकबर, एक बाप से ये नहीं पूछा जाएगा तुमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया या नहीं बनाया, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा तुमने अपने बच्चे को कुरान की तालीम दी या नहीं दी। अपने बच्चे को तुमने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह के अंदर जबीन नियाज झुकाने के सिलसिले में जो मसाइल हैं वो बताए या नहीं बताए। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाकर हर घर को इल्म के जेवर से आरास्ता करने का एक प्लान अता फरमा दिया, एक मंसूबा अता फरमा दिया, एक परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तूर अता फरमा दिया। अब सहाबा की सिचुएशन ये हुई, हर सहाबी अपने घर की फिक्र में लग गए, हर सहाबी अपने घर वालों को संवारने में लग गए। जो कुछ हुजूर से सीखते आकर घर वालों को बताते, जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते आका ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सिखाते। अल्लाह अकबर। जहां ये घर के सरपरस्त की और घर के जिम्मेदार के हवाले से जहां ये कानून अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये भी चाहते थे कि सिर्फ घर वालों तक ये कानून महफूज न रहे, लेकिन आज ये मैं आपको बताऊं, ये जो कहा जाता है, ये जो आयात कोट की जाती हैं, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। जानते हैं इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है अपने बच्चों को इल्म और अदब सिखाओ, ताकि इल्म और अदब सीख लेने के बाद वो जहन्नम की आग से बच सकें, इल्म उन्हें जन्नत की तरफ ले जाए। और इल्म का मकाम है ही ऐसा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इल्म के रास्ते पर चलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। अल्लाह अकबर। ये इल्म की फजीलत है, ये इल्म का मकाम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मासूम फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए मगफिरत की दुआएं किया करते हैं। अब आप देखें, दुनिया का इंसान ये तसव्वुर करता है सरमाएदारी की बुनियाद पर। यकीनन सरमाया जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि आप सरमाया जमा न करें, मैं ये नहीं कहता कि आप मेडिकल की डिग्री हासिल न करें, मैं ये नहीं कहता कि आप लॉयर न बने, मैं ये नहीं कहता कि आप इंजीनियर न बने, लेकिन मैं साथ में ये जरूर कहूंगा, ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ठंडे कलेजे से सिर्फ इतना सोचना कि ये सब तो आप बन गए, पक्के मुसलमान भी बने या नहीं बने। क्या आपको कुरान पढ़ना आता है? क्या आपको नमाज के मसाइल से वाकिफियत है? क्या कभी इसको सीखने की आपने कोशिश की? क्या कभी इसके सिलसिले में आपने जिद्दोजहद की? खुदा की कसम, मुझे बहुत सारे निकाह पढ़ाते वक्त ऐसे लोगों से साबका पड़ा है जो निकाह करने वाला, जो दूल्हा जो होता है, उसे पहला कलेमा तक याद नहीं होता। जिस कौम की सिचुएशन ये हो, जिस नौजवान की सिचुएशन ये हो कि पहला कलेमा भी न पढ़ सकता हो, आप मुझे बताएं उस कौम की जहालत के हवाले से क्या तसव्वुर किया जाए। आप जरा सोचो, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज के जरिए उम्मत मुस्लिमा को उरूज देना चाहते थे वो एजुकेशन था, वो तालीम थी। आज तालीम के मामले में हर माँ बाप बेफिक्री का मुजाहिरा कर रहे हैं और ये तसव्वुर करते हैं कि बस सिर्फ दुनिया की डिग्री हमारे बच्चे को मिल जानी चाहिए, चाहे दीन के हवाले से, कुरान के हवाले से, मारिफत खुदाबंदी के हवाले से, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के औसाफ के बारे में जानने के हवाले से, कुछ इल्म हो या ना हो, अपने आका की अजमतों के हवाले से कुछ इल्म हो या ना हो, बस मेरा बच्चा कोट पेंट पहने, मेरा बच्चा आला कुर्सी पर बैठे और मेरा बच्चा बड़ा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, फिर मैं अर्ज करूंगा मैं इसका मुखालिफ नहीं। लेकिन कोई भी डिग्री माँ बाप के मरने के बाद माँ बाप की कब्र पर कोई इंग्लिश के अंदर जा करके कोई चीज पढ़ करके बख्श नहीं सकता। लेकिन अगर कुरान पढ़ना जानता है तो माँ बाप के मरने के बाद ये कुरान के जरिए इसाले सवाब कर सकता है, नमाज जनाजा पढ़ सकता है। नमाज जनाजा की दुआएं याद नहीं होती। बहुत सारे जालिम बच्चे अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ते वक्त उन्हें यह भी नहीं मालूम कि नमाज जनाजा की दुआ क्या है। एक बाप जिसने अपने बेटे को सब कुछ सिखा दिया, नमाज जनाजा की दुआ न सिखाने की वजह से वो बच्चा बाप के मरने के बाद
बाप की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ पाता और न उसे मगफिरत की दुआ का सलीका आता है। कितने ताज्जुब की बात है। तो अर्ज ये कर रहा था, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर घर के सरपरस्त को, जिम्मेदार को उसके मातहत वालों के बारे में पूछा जाएगा। मुराद सिर्फ घर के ही नहीं है, बल्कि हर जिम्मेदार को, जो भी जिम्मेदार है उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। कमेंट शेयर जरूर करिए। मुअज्जज़ सामीने इकराम, हम और आप जान चुके हैं इस वीडियो में कि इल्म सीखना कितना ज़रूरी है। दोस्तों और बुजुर्गों, हमें और आपको नमाज पढ़ने का तरीका मालूम सही से नहीं है। हम और आप इल्म के द्वारा जान सकते हैं कि हमारी नमाज में कितनी खामियां हैं, कितनी गलतियां हैं। हम और आप इल्म सीख करके नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज जो है एकदम मुकम्मल होगी। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।